विद ऑल ऑफ अस मैं होप करती हाँ कि जो भी तुसी सानू अज ज्ञान वंडिया है, साडे बच्चे जिहड़े इस हॉल च उपस्थित ने इस ज्ञान नू चंगी तरीके नाल यूटिलाइज़ करनगे जदों वो स्कूल्स दे विच जाणगे इंटर्नशिप ट्रेनिंग दे लई, एज वैल एज जदों उन्हां दी एक्चुअल प्लेसमेंट्स होणगियां। हुण मैं अपने रिस्पैक्टेड प्रिंसीपल सर डॉक्टर परगट सिंह गरचा नू इनवाइट करदी हाँ कि वो अपने विचार साडे नाल सांझे करन। A very good afternoon to all the students. I think during the last 1.5 hour, you have learned what kind of changes you will be seeing in your schools. Whenever you will be going to the government schools, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। there are number of changes in the school system. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, but in last 5 to 7 years there are number of changes in government schools too. The Educare app, the iSchoola project, then LCD projector in every classroom. The total scenario of the government schools is changed now. ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੌਟ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਆਰ ਓਨਲੀ ਟੌਟ, ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਚਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੌਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਨਾਓ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸਕੂਲਸ ਇਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਡ ਅ ਲੋਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ जिस तरह दियाँ लर्निंग दे विच चेंजेस आईयां ने, आपने कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्शन देख ली है आपने सामने स्क्रीन पे कि कौन कौन सी ऐप्स बन चुकी है। और उससे भी जो बेटर थिंग है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ प्रिपेयर्ड बाय द टीचर्स। इसके लिए किसी भी बाहर से कोई एक्सपर्ट नहीं आया। ऑल द टीचर्स वर्किंग इन डिफरेंट स्कूल्स हैव प्रिपेयर्ड दीज ऐप्स। द एजुकेयर ऐप इज़ प्रिपेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर्स। उसमें एक ICT, जिसको थोड़ा ICT के बारे में पता है वो टीचर है, बाकी कंटेंट टीचर्स हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज़ डेवलप्ड बाय द टीचर्स देमसेल्व्स। तो जब आप इंटर्नशिप के लिए जाओगे, यू मस्ट बी वेल अवेयर अबाउट दीज चेंजेस। अभी तक आपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, शायद हमारे कॉलेजेस में हर एक क्लास में LCD प्रोजेक्टर, जहाँ हर एक क्लास में कंटेंट अभी तक यूज़ नहीं हो रहा था। जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहाँ पे भी ये चीज़ें इतनी पॉपुलर नहीं थी। दो चीज़ों की कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ। एक तो जो लीडरशिप थी स्कूल के पास, उसकी कंट्रीब्यूशन, एंड सेकंड थिंग ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक। अब कोरोना पैंडेमिक की वजह से यहाँ पे कुछ चेयर्स खाली भी पड़ी हैं। दिस इज़ द बैड इफेक्ट ऑफ द कोरोना, but we have a positive attitude toward technology. This is a positive effect of corona pandemic. Before March 2020, no one was knowing about the Google Classroom, no one was knowing about the Zoom, the Google Meet, such platforms. But now if you want to work in schools, whether it is a private or a government school, you must be well aware about each and everything. What kind of changes are going on in government schools and as well as in private schools. This was one effort to give some information about the government schools. We will try one session from one CBSE principal also, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ कैन बी इन अ CBSE स्कूल और इन अ PSEB स्कूल। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਇਸਿਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂਰ ਚੋਇਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਵੀ ਵਿਲ ਅਲਾਟ ਸਕੂਲਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਯੂਰ ਚੋਇਸਿਸ। in case any student have not given any choice, then we will allocate the school to the students. But in case in coming months एनी गवर्नमेंट लेटर आती है, कोई गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन आती है कि आपने SCERT के पोर्टल पे बच्चों को रजिस्टर करना है, उसके बाद वो अलॉट करते हैं, देन यू मस्ट बी रेडी फॉर एनी चेंज इन नियर फ्यूचर। अभी आप
जे प्री इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद जैसे आपने आपके साथ डॉक्टर यशपाल जी ने एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया हुआ है, यू विल फिल योर चॉइस ऑफ योर स्कूल, वी विल अलॉट एज पर योर चॉइस, बट इन केस any letter in a coming month regarding allocation of the student on the SCRT portal, then we have to fill all the details on the SCRT portal. कल से पहले तक 9th तक जो हमें गाइडलाइंस आई हुई थी कि the classes will be in the online mode, but now it is a good initiative of the respected Krishna Kumar, Secretary Higher Education, that now colleges will work in offline. Now there is no compulsion of online classes. Last day during a meeting with the government college principal, it is a clearly described that all the classes will be in the offline mode. So the same order will be applied to the aided college as well as the private colleges. So in the coming days, this is a good change that now the classes will be in the offline mode. आपको इतना पता है कि कॉलेज ने आपके लिए मूडल प्लेटफॉर्म ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आपके मोबाइल फ़ोन्स में उसकी एप्लीकेशन है, जिस पे कोशिश ये की जाती है कि अगर कोई बच्चा किसी कारण किसी क्लास को मिस भी कर लेता है, सो दैट वो स्टूडेंट का कोई एकेडमिक लॉस ना हो, कुछ ना कुछ मटेरियल उसको उस ऐप पे, मूडल ऐप पे मिल जाता है। अभी तक आप मूडल ऐप को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं कि आपके टीचर ने आपके लिए कोई असाइनमेंट डाली है, आपके टीचर ने कोई वीडियो डाली है, यू आर वॉचिंग द वीडियो और यू आर अटेम्प्टिंग योर असाइनमेंट, उसके आगे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उससे अपने टीचर के साथ कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो कर सकते हैं डिस्कशन फोरम में, आप कोई अपनी क्वेरी डालनी है, यू कैन यूज़ दैट ऐप फॉर योर डिस्कशन पर्पज़। तो उस ऐप को जितना आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू पीपल। जिस भी बच्चे को कोई ऐप में प्रॉब्लम आ रही है, ही कैन कॉन्टैक्ट विद मैडम रमनदीप कौर, शी विल हेल्प यू। अगर उसको लॉगिन में प्रॉब्लम है, किसी को उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम है, शी इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू पीपल। ऐसे ही आपको 2 कोर्सेज में इनरोल किया गया है, एक प्री इंटर्नशिप, एक इंटर्नशिप। प्री इंटर्नशिप में जो हमारा अभी शेड्यूल चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ सेंट ऑन दैट पर्टिकुलर ऐप। अगर आप कोई सेशन मिस कर जाएं तो आप वहाँ पे कंपनसेट कर सकते हैं। सेकेंडली, एक इंटर्नशिप के कोर्स में आपको ऐड किया गया है जहाँ पे बहुत से डेमो लेसन्स हैं। अभी आप जाओगे स्कूल्स में, साइंस को कैसे टीच करना है, इंग्लिश को कैसे टीच करना है, मैथ को कैसे टीच करना है, बहुत सी चीज़ें हम किसी से कॉपी करके सीखते हैं। अगर आप किसी का बिहेवियर बार बार देखो, कोई बहुत अच्छा पर्सन आपके सामने काम कर रहा है, आप घर में काम कर रहे हो, आप अपनी मदर से, अपनी बड़ी सिस्टर से, जैसे वो किचन में काम कर रही है वैसे आप उसको कॉपी करके सीख रहे हो। इन द सेम वे वी हैव ट्राइड टू गिव यू एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इन दैट इंटर्नशिप। 12th को अभी जो 12 तारीख आ रही है उसको 2 हम आपके लिए एक्सपर्ट सेशन करवाएंगे, जिनमें से 2 टीचर बाहर से आएंगे जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन लेसन देंगे कि आपने स्कूल्स में जाकर टीच कैसे करना है। देन आपके हर एक क्लासरूम में आपके सब्जेक्ट टीचर एक एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, तो आपके पास एटलीस्ट 3 डेमोन्स्ट्रेशन लेसन हो जाएंगे कॉपी करने के लिए हमने कैसे टीच करना है। इट इज़ वेरी ईजी टू से ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट थिंग। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि कैसे आपने जाकर स्कूल्स में टीच करना है। ऐसे ही जो एमएड क्लास है, आपने एमएड क्लास में ऑब्जर्वेशंस करनी है। जो बीएड की टीचिंग हो रही है, जो बीएड के स्टूडेंट टीच करते हैं, यू हैव अ प्रैक्टिकल पार्ट, यू हैव टू गो टू द स्कूल्स फॉर इंटर्नशिप पर्पज़। तो अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप बेटर वे से उनको ऑब्जर्व कर पाओगे, उनकी ऑब्जर्वेशन करके उनको इवेल्युएट कर पाओगे। सो एक तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अभी भी चलो कोरोना पैंडेमिक का केस चल रहा था, अभी बच्चे आराम से आ रहे थे, आज आपने अपनी अटेंडेंस, जो आपके प्री इंटर्नशिप इंचार्जेस हैं डॉक्टर यशपाल सिंह जी और डॉक्टर जसवीर कौर मैम, उनके पास अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क करवानी है। और आपकी लेक्चर शॉर्टेज 9th से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सो इट इज़ योर ड्यूटी कि जब आप स्कूल्स में भी जाते हैं वहाँ पे 2 जगह पे अटेंडेंस आपकी नोट होगी। एक आपके जो टीचर इंचार्ज होंगे उनके पास नोट होगी, सेकंड आपकी कंसर्न स्कूल में। देखिए, प्री इंटर्नशिप पीरियड में आपकी टीचिंग की क्लासेस में यू कैन कमिट अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स, नो प्रॉब्लम, वी आर इन द लर्निंग स्टेज।
पर जब हम स्कूल्स में चले गए तो वो बच्चे हमारे पास खिलौने नहीं हैं जिनके साथ हम खेलने जा रहे हैं. वी आर डीलिंग विद द फ्यूचर ऑफ दो स्टूडेंट्स. सो हमें उसके लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर होकर जाना है. हम अपनी बीएड करने के लिए वहाँ नहीं जा रहे, हम उनको टीच करने के लिए वहाँ जा रहे हैं. आपके तो 3 महीने 4 महीने 14 वीक का कोर्स पूरा हो जाएगा. उन 14 वीक्स में उन बच्चों का लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, इट विल डिपेंड अपॉन योर कमिटमेंट. सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हमने अपना कोर्स वर्क पूरा करना है, उस टाइम में हमने बच्चों को कितना उनकी स्किल्स को इन्हांस किया, कितना उनके कंटेंट को इन्हांस किया, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसको आप कैसे करोगे? इफ़ यू विल अटेंड ऑल द प्री इंटर्नशिप सेशंस, if you will understand how to plan your lesson, if you will understand how to demonstrate your lesson, how to deliver your lesson by using different techniques, इन चीज़ों के बारे में ऑनलाइन बुक्स से हम रीड नहीं कर सकते. These kind of things are the behavioral changes. जब आप अपने टीचर से बात करोगे, आप अपने टीचर को देखोगे, these kind of things can be learned by watching someone, by observing the behavior of someone. सो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो बेटा, मैंने पहले भी 2-3 बार बात की है, दैट इज़ वेरी इजी टास्क कि हम आपको बिल्कुल ओपन छोड़ दें, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में चलता है कि आप आओ या ना आओ. दिस इज़ अ नॉर्मल ट्रेंड. अभी तो कोरोना की वजह से चल रहा था सारा कुछ, लेकिन बहुत से कॉलेजेस में ऐसी प्रक्रिया भी चल रही है, ऐसी प्रोसेस भी चलती है कि आपकी मर्जी है आप आएँ या ना आएँ. अगर आप नहीं आओगे, क्या हमें टीचर्स अपॉइंट करने की ज़रूरत होगी? अभी आपको हर एक क्लास में एक टीचर ने जाना होता है, उसने टीच करना है. अगर आप नहीं आओगे, आर वर्क विल बी ईजी. हमें कोई टीचर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, पंखे चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस चलाने की ज़रूरत नहीं है. तो वी विल बी इन द कंफर्ट जोन. लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर किसी बच्चे को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन इशू है, ही कैन टेल द मेंटर इंचार्ज, सब्जेक्ट टीचर्स कि मुझे इतनी इसमें प्रॉब्लम है, मुझे इतने दिन में नहीं आ सकता. उसके लिए प्रोविज़न है सारी. लेकिन जो बच्चे सिर्फ ये देखते हैं कि आज 40 आए हैं तो कल कोई बात नहीं 30 आएंगे, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता. फ़र्क पड़ता है. फ़र्क हमारे लिए भी है, फ़र्क आपके लिए बहुत है. जब आप स्कूल्स में जाओगे, फिर आप मजाक का वहाँ पे एक करैक्टर बन जाओगे. जब आपकी लेसन प्लान की कॉपी होगी वो प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं होगी. जब 200 मार्क्स आपके 200 मार्क्स डिपेंड करते हैं कि आपने कैसा लेसन डिलीवर किया है, अकेले लेसन डिलीवर करने के. उसके बाद आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी कि आपने अपनी कॉपी कैसे बनाई है, आपने स्कूल्स में एक्टिविटी कौन सी की है. सो पूरा सिस्टम है आपकी असेसमेंट का जो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा. और सबसे इन चीज़ों से भी जो नेक्स्ट स्टेप मैं ऑलवेज कहता हूँ कि अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर होकर इंटर्नशिप में नहीं जाओगे तो यू कैन नॉट डिलीवर योर बेस्ट इन द स्कूल्स. अब आपकी भी जैसे आप रेपुटेशन लेकर स्कूल में जा रहे हैं, आपकी रेपुटेशन भी स्टेक पे है और हमारी रेपुटेशन भी स्टेक पे है. वो ऐसा बोलेंगे कि सुधार कॉलेज से बच्चे आए हैं जिनको लेसन प्लान भी बनाना नहीं आता, उनको ऐसे भी नहीं पता कि क्लासरूम में रुककर टीच कैसे करना है, कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करनी है. इतनी चीज़ें डिपार्टमेंट लेवल पे हो रही हैं, उनको कोई भी नहीं पता कि एजुकेयर ऐप क्या होती है, आई स्कूला क्या होती है, प्रोजेक्टर कैसे चलाना है. अगर आपको बाय चांस मैं बिज़ी हूँ, बाय चांस आपके कोई टीचर बिजी है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू हैव पेड फी टू अस, यू कैन आस्क क्वेश्चन टू अस कि हमें सिखाओ ओवरहेड प्रोजेक्टर कैसे चलाना है, हमें सिखाओ गूगल क्विज कैसे बनानी है, हमें सिखाओ जूम की मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज करनी है. इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर राइट. जब हम पढ़ते हैं ना कि राइट और ड्यूटीज़ का पता होना चाहिए, आपकी ड्यूटी है मैक्सिमम क्लासेस को अटेंड करना और आपका राइट है जो चीज़ आपको अपनी टीचिंग में चाहिए, यू कैन आस्क क्वेश्चन टू मी ऑल्सो, योर टीचर्स ऑल्सो. वो इसमें यह नहीं कि आपने क्वेश्चन रेज किया तो आप उस टीचर के लिए विलन बन गए कि मुझे क्वेश्चन कैसे कर सकता है. यू कैन आस्क क्वेश्चन टू मी, योर टीचर्स, कि हमें ये स्कूल्स में चीज़ चाहिए, आप इसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करवा रहे हो, हमें इन चीज़ों के लिए एक सेशन करवा दो, हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, गूगल क्विज कैसे बनानी है, आईसीटी को कैसे यूज़ करना है. इट इज़ योर राइट टू आस्क. अगर हमारी तरफ से कोई कमी आती है, यू आर ऑलवेज वेलकम. मैंने आपको पहले बताया, या सजेशन बॉक्स आर इंस्टॉल्ड इन द कॉलेज प्रीमिसेस, यू कैन पुट एनी सजेशन विदाउट योर नेम. आपको लगता है कि ये चीज़ें
सही हो रही हैं, इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू गिव योर वैल्यूएबल सजेशन विदाउट एनी नेम, विदाउट डिस्क्लोजिंग योर आइडेंटिटी इन द सजेशन बॉक्स. It is our responsibility to improve on those points. You can send WhatsApp message, you can send email, you can use suggestion box, any mode you want. जब आप इस कॉलेज में आज के हो, ये 2 मेंबर्स बैठे हैं, these are also GHG family members. We are proudly saying that these 2 persons were student of your GHG Khalsa College of Education, and at present they are working in the state team of Punjab School Education Board. All these changes I have observed Mr. Jasveer Singh organizing meeting at 7 o'clock, at 8 o'clock, at 3 p.m., at 4 p.m. There is no fixed timetable. There is no fixed time in the school system. They are organizing meeting at 7:30, 8:30, 9:30. The Honorable Secretary Sir, Mr. Krishna Kumar, reaching the Taran Taran school at 8 o'clock. चंडीगढ़ से चलेगा, चंडीगढ़ से चल के तरन तारण पहुंचने के लिए मिनिमम 4 या 5 घंटे का रास्ता है. अगर वो 8 o'clock स्कूल में जाता है तो कितने बजे चलेगा चंडीगढ़ से? यू कैन ईजिली इमेजिन कि चंडीगढ़ से तरन तारण जाने के लिए कितना रास्ता लगता है, कितना टाइम लगता है. नाउ दैट पर्सन इज अ सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन. जब आप स्कूल्स में होंगे, आप कॉलेजेस में होंगे, नाउ दैट पर्सन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद यू पीपल from 2 angles, one from the higher education side, another is from the school education side. Directly जब हम B.Ed कॉलेज हैं तो हम तो दोनों के साथ अटैच है ना. टीचर ट्रेनिंग कॉलेज इज अटैच टू द स्कूल्स ऑल्सो. तो एक तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आई सल्यूट टू यू पीपल कि आप अपना फ़र्ज निभा रहे हो, अपनी ड्यूटी निभा रहे हो क्लासेस अटेंड करने की. बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं पूरे सिस्टम में जहाँ पे कॉलेज भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं ना आने पे. बट द बेटर थिंग, जितना आप मैक्सिमम देखिए कोरोना की गाइडलाइंस फॉलो करके अभी तक आ रहे थे, आगे इसको और इन्हांस कीजिए ताकि जो आपके टीचर्स आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो कॉलेज आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है, यू कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट एंड देन टेल अदर्स ऑल्सो. अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ग्रुप हैं, देखिए क्या वो चीज़ें जो लेसन प्लानिंग की बातें आप अपने टीचर से कर रहे हो, क्या वो चीज़ें आप बुक से लर्न कर सकते हो? कहाँ पे गलती हो रही है, कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, कैसे उनको क्लासरूम में प्रेजेंट करना है. बातें करनी बहुत ईजी होती हैं, पेपर लिखना बहुत ईजी होता है. जब आपने जाकर क्लासरूम में टीच करना है 35 मिनट के लिए, जब 35 डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस विल बी इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, देन यू विल रियलाइज व्हाट इज टीचिंग, how to handle those students. One is coming from a disadvantaged group, one is coming from the weaker section, one is coming from different strata of the society. You have to deal with all the student, above average, below average, average. Every type of student will be in your class. Different type of student will be in the CBSE schools, different type of student will be in the government schools, but you have to deal with the all type of students. क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे अंडरस्टैंड करना है. जितनी देर तक आप कॉन्फिडेंटली अपनी क्लास में हाफ एन आवर नहीं रुक सकते, कोई भी पर्सन आपको बचा नहीं सकता. आप इंटर्नशिप में भी बहुत से वेज मिल जाएंगे, वहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट करके 3 की जगह 2 क्लासेस लगा के, 2 की जगह 1 लगाकर, वो आप किसी को धोखा नहीं दे रहे. यू आर किसके साथ प्ले कर रहे हो? यू आर प्लेइंग विद योर ओन फ्यूचर. उसके बाद B.Ed किसके लिए कर रहे हो आप? अल्टीमेटली यू आर डूइंग B.Ed फॉर गेटिंग अ गुड जॉब. गुड जॉब कहाँ पे होगी? जब आप क्लासरूम में प्रॉपरली टीच कर पाओगे. टीच कैसे कर पाओगे? अगर आपने उस सारी प्रेपरेशन को किया है. आज आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, कैसे करते हो? क्योंकि आपने प्लस माइनस, एडिशन, डिलीशन, आपने टेबल्स पहले सीखे हैं. यही प्रोसेस है ना. आप B.Ed में पहुंचे हो, क्यों पहुंचे हो? क्योंकि BA पहले की है. अगर हमने किसी चीज़ की फाउंडेशन ना बनाई हो तो उस पर बिल्डिंग नहीं बना सकते. अगर बना भी लेंगे तो बिल्डिंग कैसी होगी? वो एक हवा का झोंका आ जाएगा और हवा के झोंके के साथ वो पूरी की पूरी बिल्डिंग चली जाएगी. योर फाउंडेशन मस्ट बी स्ट्रांग. जो फाउंडेशन कब बन रही है? जब आपका प्री इंटर्नशिप पीरियड चल रहा है, दैट इज योर फाउंडेशन. अगर वो फाउंडेशन स्ट्रांग है, यू कैन बिल्ड 2 स्टोरी बिल्डिंग, 3 स्टोरी बिल्डिंग, 4 स्टोरी बिल्डिंग. अगर वो फाउंडेशन इतनी वीक होगी कि जिस पे आप एक बिल्डिंग भी बनाओगे, थोड़ा सा हवा का झोंका आएगा, आपको भी उड़ा के ले जाएगा और आपकी बिल्डिंग को भी उड़ा के ले जाएगा. सो इट इज़ अ बेटर
to understand the value of the face to face interaction, the value of the classes. अगर किसी वजह से आप मिस कर जाते हैं, then it is your responsibility to ask other student, आज क्या हुआ था, आज कैसे हुआ था, मुझे ये बता दो कैसे हुआ था, मैं मूडल पे जाकर देखूं, मूडल पे कोई लेक्चर अपलोड किया है, कितना किया है, कैसे देखना है उसको, आधा उससे समझ आएगा। 100% हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपके लिए। वी ऑलवेज ट्राई टू पुट दीज रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब चैनल और ऑन द मूडल प्लेटफॉर्म। वी आर डूइंग दीज एफर्ट्स फॉर दो स्टूडेंट हु आर नॉट कमिंग ड्यू टू वन और अनदर रीज़न। कल तक तो हम किसी को बोल भी नहीं सकते थे, किसी की लेक्चर शॉर्टेज भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा गाइडलाइंस ही नहीं थी कि बच्चों को ऑफलाइन बुलाना है। But we thought that these are the practical things, these cannot be discussed over the Zoom meeting. That's why we planned pre-internship period in a offline mode. So अभी आप लोग एज अ GHG फैमिली मेम्बर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने आप 40-50 लोग यहाँ पे बैठे हो, you can call at least one person. You can motivate your friends to attend maximum classes, to gain maximum, ताकि जो आपका मेन पर्पस है बीएड करने का वो पूरा हो सके। ओके, सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव इंट्रैक्शन, अ प्लेटफॉर्म फॉर इंट्रैक्शन विद सच अ विजनरी पर्सन, जैसे आपके साथ मिस्टर जसवीर सिंह, जो डिस्ट्रिक्ट मेंटर और स्टेट रिसोर्स पर्सन के तौर पे काम कर रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। और उसके साथ ही जो आपका एरिया है, इस एरिया में जो ब्लॉक, पूरे ब्लॉक है, डिफरेंट स्कूल्स हैं, उसके बेसिस पे ब्लॉक बनता है, उस ब्लॉक के सभी टीचर्स की मैथमेटिक्स के लिए मेंटरिंग कर रहे हैं मिस्टर मनप्रीत सिंह। सो प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीज टू पर्सन, जिन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आज अपना जो कीमती समय था, आज इनकी हॉलीडे थी, लेकिन उसको भी उन्होंने अपने कॉलेज के लिए देते हुए, ताकि जो इन्होंने यहाँ से लर्न किया है वो आप लोगों तक लेकर जा सकें। तो उन्होंने अपना जो फ़र्ज़ था इस कॉलेज के प्रति वो निभाया है। नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी हमने उनसे लर्न किया है उसको जाकर गूगल से देखें, नेट से देखें, डिस्कशन करें। जब भी हम स्कूल में जाएं, वी शुड बी वेल वर्स विद दीज काइंड ऑफ चेंजेस विच आर हैपनिंग इन द स्कूल्स। ओके, कोई क्वेश्चन आपका, कोई क्वेरी आपकी? जी आप पूछना शुरू कीजिए, क्लासेस में भी, हॉल में भी। एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, हर सवाल का जवाब फिर एक सवाल हो। दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। आप क्लासरूम में भी जाओगे, आपके बच्चे पहली बार आपके कहने पे नहीं बोलेंगे। आप जाओगे क्लासरूम में, दे विल बी पैसिव लिसनर। हाउ टू मेक देम एक्टिव लिसनर, हाउ टू मेक देम एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ योर क्लासरूम, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच टीचर। आपने कैसे क्वेश्चनिंग करनी है, आपने कैसे सिचुएशन क्रिएट करनी है क्लासरूम में, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी टीचर। आपने उनको मोटिवेट करना है, क्योंकि उनके बेचारे की जो क्वेश्चनिंग की स्किल है पिछले 12-15 सालों से दबा कर रखी हुई है। वो स्नब किया हो गया है, चाहे पेरेंट्स ने किया, चाहे पहले टीचर्स ने किया। अब आपने उनको उस डायलमा से बाहर लेके आना है, जैसे आपकी क्वेश्चनिंग की स्किल अब तक दबा कर रखी हुई है। अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछोगे, तो अगर मेरी ईगो पे थोड़ी सी भी आंच आ गई तो मैं तो उसका नाम नोट कर लूँगा, इस बच्चे ने मुझे हॉल में कैसे क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर मुझे पता नहीं था। अब टीचर्स को बोलूँगा इसका रोल नंबर नोट करो, इसकी असेसमेंट का ध्यान रखेंगे। So these kind of behavior, these kind of observation are in different schools and colleges. We have to break these shackles. We have to come to the level of the student. So with these words, I am very much hopeful that the attendance will be improved attendance on Monday. Now you can work with the assigned work by your teachers. अभी आपको रमन मैम आपके ग्रुप में मैसेज डाल देंगे कैसे हम क्लासेस की एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टेकन 2 classes इन दिस सेशन, वी विल मेक माइनर एडजस्टमेंट इन द टाइम टेबल। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अभी ग्रुप में 15 मिनट 5-7 मिनट की आप लीजिए, ब्रेक लीजिए। आफ्टर 10 मिनट यू विल गेट अ मैसेज कि कौन कौन सी क्लासेस आपकी नेक्स्ट लगेंगी। ओके, क्लासेस में जितना कोशिश कर सकते हैं अपने टीचर से इंटरेक्ट कीजिए। Okay, so with these words, I'm thankful to all the students who are continuously coming to the college and performing their duties. And you must be aware about your right and duties clearly. Thank you very much.
A mediocre teacher explains. A good teacher demonstrates. And a great teacher inspires. A journey which began over 100 years ago. This is the story of Guru Har Gobind Sahib Khalsa College, also known as the Wonder in Rural Hinterland.